Hello everyone. Last lecture we had seen the what is the meaning of logistic management. We had seen the definitions of logistic management. We can also logistic management. What is the purpose of logistic management in production and operations also? We had seen some definitions in there. Some pictures is there how logistic maintain it that. Then the main component of logistic demand planning, storage and materials, inventory management, transportations management. Simultaneously we had seen the functions of logistic management. There is the four functions: design, order, procurement and reverse logistic. Simultaneously we had seen the difference between the supply chain management and logistic management. So now in these lectures we have to see the interface between the marketing and productions. So what kind of difference or what kind of interface with the marketing and production with the logistic? So learning objectives are to familiarize with the basic concept of logistic and supply chain management. Second one is to understand the recent involvement of logistic. Third one is to understand the reason for its recent growth in importance. Fourth one is to understand the importance of IT in logistics. So these factors we have to see in the logistic interface with the marketing and productions. So our supply chain management overview how work with the logistics. So for example we will consider we received a material from the vendor. We will see here vendor plans and ports at the right hand side. At the bottom the first one is vendor plant and port. Whenever vendor send material to us, there is the transportations. It will be received at the warehouse and store department. At that the store department receiving or inspections team will be receive this material and inspect the material quality is appropriate as per our standard or material quantity is okay as per the given demand. So this material will be go to the factory for a converting uh, raw material to the finished good. This material will also go to the after completions of finished good, it will be go for a warehouse or store department. After that as per demand of customer it will be go to the customer. These are the process of supply chain or logistic management also. Logistic interface with the marketing and productions. There is the some interface with the marketing. There is the 4ps. 4ps means price, product, promotions and place. These are the important factors in a marketing and productions also. So first one is price. In that the carrier pricing means generally since the larger the shipment, the cheaper the transportation rate. जब हम हमारा शिपमेंट जो रहता है, जैसे कि कस्टमर की डिमांड क्वांटिटी जब ज़्यादा रहेगी तो उसके लिए जो भी रेट लगने वाला है तो वो मिनिमम से मिनिमम रेट लगेगा. जब हमारी कस्टमर की क्वांटिटी कम रहेगी तो उसके लिए चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस रहेंगे वो ज़्यादा लगेंगे. तो लॉजिस्टिक is directly or indirectly impact on a marketing or price factors. So the customer should be need a high demand of materials from our vendor, so it will be negotiable for a logistics. So shipment size should be tailored to the carrier vehicles capacity over as possible. तो हम जो भी मटेरियल उनको शिप करने वाले हैं तो वो डिपेंड करता है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है और हमारी कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए हम टेलर्ड जनरली यूज़ करते हैं. उसके बाद आएगा मैचिंग शेड्यूल. द क्वांटिटी डिस्काउंट शुड बी टाइड टू कैरियर क्वांटिटी डिस्काउंट्स. तो क्वांटिटी डिस्काउंट में क्या आएगा, जनरली हमारे कस्टमर की डिमांड कभी ज़्यादा रहती है तो हम उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी मैच करके और उसकी क्वांटिटी को भी मैच करेंगे. तो उससे क्या होगा, उनकी क्वांटिटी विद क्वालिटी फैक्टर्स भी हमें मैच करना होता है. तो ये फैक्टर्स
मैचिंग शेड्यूल्स में आएगा। उसके बाद आएगा वॉल्यूम वॉल्यूम रेशो। वॉल्यूम शुड विल अफेक्ट द इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट। जब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल सेल आउट होगा तो उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट पे। तो दिस ये था हमारा प्राइस फैक्टर। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक इंटरफेस विद द प्रोडक्शन विद प्रोडक्ट फैक्टर्स। द कंज्यूमर पैकिंग जनरली सीन्स द size, shape, weight and other physical characteristics of the product impact on its storage। तो स्टोरेज पे हमारा उसकी साइज़ आती है, उसकी साइज़ आने के बाद उसका वेट आता है, उसका शेप आता है। उसके बाद अदर फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट इम्पैक्ट ऑन इट्स स्टोरेज। हमें स्टोरेज में वहाँ पे उस साइज़ की वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल करना पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्रोडक्ट डैमेज ना हो और कुछ जो भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है तो उसके लिए हमें केयरिंग करना है। तो उसके लिए कंज्यूमर पैकेजिंग में ये सब पॉइंट आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग द लॉजिस्टिक मैनेजर शुड बी इंक्लूड एनी डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ट्रीट। तो जो लॉजिस्टिक मैनेजर है उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रोडक्ट की साइज़ कैसी है, उनका शेप कैसा है, वेट कैसा है, अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं। ये सब चीज़ें कंसिडर करके हमें उस प्रोडक्ट को हैंडल करना होता है। उसके बाद आता है अ माइनर करेक्शन इन एनी ऑफ द अबोव कुड कन्विंसिबली कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर इन अ लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो हमारे इस प्रोडक्ट में या इस ट्रांसपोर्टेशन में माइनर का भी चेंजेस आता है तो उसका इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन अ लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट में कन्वर्ट होता है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट आर नॉट अ नेसेसरी पैरामाउंट बट दे नीड टू बी कंसिडर इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो ज़्यादा इतना ये नहीं है, लेकिन हम जब प्रोसेस करते हैं उसका जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें वो डिसीजन मेकिंग में हम उसको कंसिडर करते हैं। थर्ड वन आएगा प्रमोशंस। द लॉजिस्टिक इन द फर्म प्रमोशंस द पुल वर्सेस पुश। पुल वर्सेस पुश में हमारा जनरली आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट द लॉजिस्टिक डिविजन्स अवेयर ऑफ एनी चेंजेस इन डिमांड पैटर्न सो दैट इट कैन बी प्लान फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस। तो हम जनरली हमारा जो भी चेंजेस होते हैं प्रोडक्ट में डिमांड अब अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर, सो हमें उसके कॉन्सिक्वेंस को भी ध्यान में रखना है। पुल स्ट्रेटजी टेंड्स टू मोर इरेटिक। जब हम उसको पुल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इरेटिक रहेगा और हम उसको पुश सिस्टम में जब उसको पुश करेंगे तो उसकी प्रोडक्टेबल हमें कितना प्रोडक्ट उनको सेल आउट करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पुल और पुश सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो पुल स्ट्रैटेजीज टेंड टू बी अ मोर इरेटिक क्योंकि हमें वो कस्टमर से मटेरियल एक्वायर करना पड़ता है, उसकी क्वालिटी कितनी मेंटेन है, क्या मेंटेन है, हम ये चीज़ें नहीं देखते। लेकिन पुश सिस्टम रहता है कि कस्टमर हमें मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। पुश स्ट्रैटेजी टेंड टू बी मोर प्रिडिक्टेबल। तो वो कस्टमर हमें हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मीन्स उसके पहले ही हमें मटेरियल प्रोवाइड करता है तो इट्स अ गुड फॉर अस। देन द चैनल प्रमोशन द मोर पॉपुलर प्रोडक्ट the easier is to be a pursued channel member to promote your product। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको वो इजीली जाएगा कस्टमर के लिए, कस्टमर को प्रमोट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आती है लॉजिस्टिक इन द फर्म प्रमोशंस में हमें वो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है बाय यूजिंग मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक इन द फर्म मीन्स हमारा जो भी लॉजिस्टिक रहेगा, जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन रहेगा एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन तक, तो वो कौन कौन से रहेंगे। तो उसमें आएगा जनरली होलसेलर और रिटेलर। जनरली सिंस होलसेलर आर कंबाइनिंग परचेस फॉर अ मल्टीपल रिटेलर। तो होलसेलर क्या रहता है कि होलसेलर जनरली रिटेलर को मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो सिंस द होलसेलर आर कंबाइनिंग परचेसेस फॉर अ मल्टीपल retailer, the shipment size tend to be a larger and the number of transactions that have to be proceed are fewer।
तो उसकी शिपमेंट साइज जो रहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसके पास वो मटेरियल सप्लाई करने वाला है रिटेलर को। तो उसकी जो ट्रांजैक्शंस दैट हैव टू बी प्रोसीड आर फ्यूअर, उसकी जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस रहेगी वो भी कम सबसे कम रहेगी, क्योंकि उसको मल्टीपल लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करना है। विद द रिजल्ट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट आर अ स्मॉलर, उससे क्या होगा कि उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी। रिटेलर, विद द एक्सेप्शंस ऑफ वेरी लार्ज रिटेलर who act more like a wholesaler, smaller sale are the norms. This generally cost more for transaction and order processing. तो जो भी हमारे रिटेलर रहते हैं वो बहुत कम ऐसे रिटेलर रहते हैं जैसे कि वो बिहेव लाइक दैट द होलसेलर। जो होलसेलर की प्रोसेस आती है तो वो होलसेलर की प्रोसेस कुछ रिटेलर भी करते हैं। तो ये जनरली चीज़ें आती है लॉजिस्टिक इंटरफेस विद द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शंस। जनरली लॉजिस्टिक की क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है, तो उस लॉजिस्टिक में हमें ट्रांसपोर्टेशंस आता है, स्टोरेज आता है, मटेरियल का स्टोरेज, उसके बाद मटेरियल की पैकेजिंग, मटेरियल्स कैसे हैंडल करना है वो चीज़ें, ऑर्डर फुलफिलमेंट, जो कस्टमर की डिमांड है उसकी फुलफिलमेंट, फोरकास्टिंग, कस्टमर की क्या डिमांड रह सकती है इन फ्यूचर में, यह सब एक्टिविटीज़ आती है लॉजिस्टिक में। उसके बाद आता है प्रोडक्शन प्लानिंग, हमें मटेरियल कस्टमर को जो भी उसने डिमांड की है उस डिमांड डेट के अंदर ही उसको मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो उसमें आएगा प्रोडक्शन प्लानिंग। उसके बाद आ जाएगा परचेसिंग, तो हमें वो प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी मटेरियल की ज़रूरत होगी तो वो हमें परचेस करना है। उसके बाद आता है कस्टमर सर्विस, तो कस्टमर को हमें सर्विस प्रोवाइड करनी, जैसे कि हम कोई सर्विस फैक्टर में वर्क कर रहे हैं या एज अ कंपनी वर्क कर रहे हैं, तो कंपनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करेगी कि हमारे कस्टमर की डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें सॉल्व करके देने हैं। साइट लोकेशंस, तो साइट लोकेशंस डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कहाँ पे है। जैसे कि आपका कस्टमर है जर्मनी में और आप प्रोडक्ट बना रहे हो इंडिया में, तो इट्स अ बैड थिंग फॉर अस, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगी। तो जनरली हमें यह सोचना है कि हमारा कस्टमर जर्मनी में है तो हमें एज we possible we have to shift our plant in a Germany and we have to shift our warehouses in a Germany. It will be reduce our logistic cost also. And other activities, there is the number of activities in a logistic and supply chain management also. So our first topic is covered in a logistic management, in that the what is the definitions of logistic management, main component of management, logistic management, then the functions of logistic management, difference between the supply chain management and logistic management, and the last one is logistic interface with the marketing and productions. So our first unit of logistic management, it's covered in this unit. Okay, thank you.